Hello friends, today we are going to begin a very important chapter of your JEE mains, that is nothing but gravitation. Let us write down the name of the chapter. The chapter is gravitation. Now we are going to deal with this chapter in two parts. First we will see the synopsis of the chapter, then later on based on that particular synopsis we will do certain MCQs based on that concepts and formulas. Now what we are going to do exactly is, for every chapter we are going to divide the chapter into some sub parts. Okay, in that sub parts what we are going to do, for example 20 minutes of synopsis we are going to do for the first chapter, gravitation. Now those 20 minutes of synopsis will be based on certain basic formulas and initial formulas which are required to solve certain initial and basic MCQs. So by this approach we will first do some little bit of synopsis, 20 minutes of synopsis, and after that based on that synopsis certain MCQs. Now this will lead to a proper idea of the subject, making the subject into break up into certain parts so that a clear-cut understanding of this subject is achieved. My name is Petiwala Muhammad Salman and I will take the JEE mains part for you and try to cover as much MCQs as possible. So let us begin our chapter gravitation by nothing but what is called Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Now, if I talk about Newton's law of gravitation, so I may tell you that this Newton's law of gravitation is based on this word gravitation. What is the basic law of gravitation? The basic law of gravitation states that if I have two bodies, let us take an example to demonstrate what exactly gravitation is. This is my body 1 and this is my body 2. ठीक है, मेरे पास दो बॉडीज है 1 और 2. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि ये दोनों बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी. कैसे अट्रैक्ट करेगी? हमें हमारी बॉडी हमारी बॉडी 1 हमारी बॉडी 2 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी. सिमिलरली हमारी बॉडी 2 क्या करेगी? हमारी बॉडी 1 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी. इसका क्या मतलब है? हमारी बॉडी 1 और 2 हमेशा एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे. पास आने की कोशिश करेंगे मतलब क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. जब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा. समझ में आ गया कंसेप्ट? 1 क्या करेगी? 2 को अपने पास लेने की कोशिश करेगी. 2 हमारी बॉडी 1 को अपने पास लेने की कोशिश करेगी. उसके वजह से एक फोर्स आएगा जिसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. न्यूटन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया हमारे किस लिए? हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए. उसने कहा कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है 1 एंड 2, देन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. किन चीजों के प्रोपोर्शनल होता है? वो एक चीज के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूसरी चीज के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. लेट अस राइट द न्यूटन्स लॉ आउट हियर. न्यूटन सेड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to, or the force of attraction is, first point, directly proportional to the product of the masses. The product of the masses. ये किसने कहा? ये हमारे न्यूटन ने कहा कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है, इन दोनों के बीच फोर्स कितना है? इन दोनों के बीच का फोर्स है F. क्या फोर्स है? F. तो अगर हमारे पास दो बॉडीज का मास m1 और m2 है, मैं क्या कह रहा हूं? मैं हमारी बॉडी 1 का मास कह रहा हूं m1 है और हमारी बॉडी 2 का मास कह रहा हूं m2 है. तो न्यूटन ने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. व्हाट यू मीन बाय प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स? प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय द अदर. हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. ये किसने कहा? हमारे न्यूटन ने कहा. एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे न्यूटन ने कहा जो था कि दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of the distance between the two particles. To the square of distance between two particles.
ये इंपॉर्टेंट लॉ किसने दिया? हमारे न्यूटन ने दिया। इसका क्या मतलब होता है? हमारा जो फोर्स है F, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर मैं कहूं कि ये मेरा पार्टिकल 1 है और ये मेरा पार्टिकल 2 है, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम? द डिस्टेंस बिटवीन देम, इफ आई टेल यू दिस, इट इज स्मॉल r। स्मॉल r मतलब इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिफरेंस। इसका एक सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, इसका एक सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? स्मॉल r। तो न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। मैंने कहा कि स्मॉल r हमारा क्या है? हमारा स्मॉल r स्मॉल डिस्टेंस है उन दोनों की बॉडी के बीच में, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब जो हमारी टर्म होगी वो कहां आएगी? डिनोमिनेटर में आएगी। सो लेट अस बिगिन और लेट अस सी द रिलेशन ऑफ द टू फॉर्मूलाज। हमारे पास दो फॉर्मूला है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F is inversely proportional to 1 upon r square. Therefore, let us write both of the formulas together and we have F is directly proportional to m1 m2 upon r square. मैंने क्या किया? मैंने दोनों इक्वेशन को साथ में लिखने की कोशिश की। जब मैंने साथ में लिखा तो मेरे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। कौन सा रिलेशन आ गया? दैट F is directly proportional to m1 m2 upon r square. This is nothing but Newton's law of gravity in terms of proportionality. पर हमें पता है हम क्या कभी कोई इक्वेशन को प्रोपोर्शनल साइन में लिखते हैं? नहीं, हम उस प्रोपोर्शनल साइन को हमेशा कन्वर्ट करते हैं इक्वल टू साइन में। अच्छा, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं इक्वल टू साइन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके अंदर एक इक्वल टू और उसके साथ एक क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। लेट अस राइट आवर इक्वेशन अगेन एंड लेट अस मेक सर्टेन चेंजेस। हमने निकाला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल के क्या करना है? एक इक्वल टू डालना है और एक कांस्टेंट डालना है। मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट डालने वाला हूँ जिसे मैं कहता हूँ कैपिटल G, बराबर? कैपिटल G। वापस कैपिटल G वैसा का वैसा रख के मैंने m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये आ गया मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स विच टर्न आउट टू बी F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। हर जगह हमारे चैप्टर में ये रिलेशन हम यूज करेंगे बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। Therefore, F is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें अगर मैं कैपिटल G की बात करूं तो कैपिटल G क्या है? कैपिटल G इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है उसे? G को, कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल constant. Okay, it is a very important term, universal gravitational constant. ये कोई ऐसा वैसा constant नहीं है, ये बहुत important constant है जिसे हम कहते हैं universal gravitational constant. From the word itself you can understand कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। समझ में आ गया कंसेप्ट? हम कहीं पर भी जाए यूनिवर्स में इसकी वैल्यू या इसकी जो पर्टिकुलर नंबर्स है, इसके पर्टिकुलर नंबर्स या वैल्यू हमेशा हमें सेम मिलेगी। नाउ लेट अस राइट डाउन द कांस्टेंट और द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ G. वी नो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट G इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारी कैपिटल G। व्हाट इज कैपिटल G? कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ गया कंसेप्ट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। इसकी वैल्यू हमें बाय हार्ट होनी चाहिए ताकि हम अपने फॉर्मूलेस को इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमारे आंसर्स की वैल्यू निकाल पाए। ओके, सो वी हैव डिवाइडेड आवर JEE अप्रोच इनटू बेसिकली टू पार्ट्स। हमने अभी एक सिनॉप्सिस पढ़े कि कौन से लॉ पे पढ़े? न्यूटन्स लॉ पे पढ़े, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे पढ़े। अब हमने इस सिनॉप्सिस को पढ़ के क्या करने वाले हैं? इससे रिलेटेड जो हमारे MCQs हैं हम उन्हें सॉल्व करने वाले, ताकि हमारे जो आंसर्स है, हमारे जो MCQ का जो फंडा है, जो फंडा पे और जो कंसेप्ट्स पे और जो इक्वेशन पे हमारा MCQ बेस्ड है, वो ताकि हमें अच्छे से ग्रास्प हो सके। ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ द फॉर्मूला लिस्ट फ्रॉम द बोर्ड so that we can solve a few MCQs relating to these synopses. So friends, now let us see some MCQs relating to our Newton's law of gravitation. Let us see the first MCQ.
If two unit masses are placed at a unit distance apart, then the force of attraction between them is equal to. We have some options in front of us. The option number A states that acceleration due to gravity, B gravitational potential, C universal gravitational constant, D gravitational field strength. Now let us understand what is the given data to us. The given data states that if two unit masses are placed at unit distance apart. Now we have two masses. Let us consider the two masses m1 and m2. If this mass has a mass m1 and this has mass m2, and the distance between the two particles is nothing but r, small r, okay? So what data is given? A data called two unit masses. What do you mean by unit masses? Unit masses matlab m1 equal to 1 kg and m2 equal to 1 kg. We always know that unit means 1, okay? m1 equal to 1 kg, m2 equal to 1 kg. And what is the distance between the two particles given? The distance between the two particles is mentioned unit distance. What do you mean by unit distance? Unit distance again means 1 meter, okay? Now let us see what they have told us to calculate. They have told us to calculate the force of attraction between the two particles. Now let us substitute a basic formula of force and let us calculate what will be the value of force. According to the Newton's law of gravitation, force is given by F is equal to G m1 m2 upon r square. As Newton said that the force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between the two masses. Now let us see the substitution of these values. We know m1 equal to 1, okay, and m2 equal to 1 and r equal to 1 square. You know what is 1 into 1? 1 into 1 is nothing but 1 divided by 1 square again makes it equal to 1. Hence my final answer will be F equal to G. Hence I can say my force is coming out to be equal to G. Now what is G? G is nothing but the universal gravitational constant. Let us see, they had asked us to calculate the force and the option which says that universal gravitation constant is nothing but option C. Hence option C will be the correct answer for this MCQ. Now after finishing this MCQ, let us focus on the next MCQ. If two spheres of mass m1 and m2 are separated by a distance d and situated in air and the gravitational force of attraction between them is F. If the two spheres are kept in a liquid of specific gravity 5, then the gravitational force between them will be. Some options are given to us: 5F, F by 5, F and root F. Now let us see what will be the correct answer, but let us analyze the MCQ first. हमें कहा गया है कि हमारे पास दो masses है m1 and m2. They are separated by a distance d. Let us draw the basic diagram which we have already seen. Two masses m1 m2 separated by a distance how much? d. बराबर, separated by a distance d. अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें कहा गया है कि the force of attraction between them in air. एयर में अगर हम इन पार्टिकल्स को रखें तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आता है? F आता है. नाउ दे हैव टोल्ड अस इफ द टू स्फीयर्स आर केप्ट इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 5. हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों मासेस को अब एयर में से निकाल करके एक लिक्विड में डाल देते हैं. बराबर, क्या कर रहे हैं? एक लिक्विड में डाल रहे हैं जिसका हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन्ड है कितनी? 5. नाउ अब ये पूरे सेटअप को हम क्या कर रहे हैं? एक लिक्विड में डाल के इमर्स्ड करके रख रहे हैं. दो स्पीयर्स हमारे पास, दोनों का मास m1 m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा स्मॉल d. ओके, अब जब लिक्विड में डालने के बाद हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स. व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स और द टू स्पीयर्स. नाउ फ्रॉम द टू स्पीयर्स यू कैन सी द ग्रेविटेशनल फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट. But let us go to our basics. We know the fact that force is given by the formula F is equal to G m1 m2 upon r square. We know this fact that a force depends on two things. It depends on the product of the masses and it depends on the square of the distance between the two masses. Hence from here you can say that force of attraction does not depend on the medium in which the particles are placed. Particles हमारे या हमारे spheres अगर हमारे air में place होते हैं तो भी उनका force होगा F, and if the particles are placed in a liquid then too the force of attraction between them will be F. बराबर,
मीडियम कोई भी हो, कहीं पर भी हम ले जाए हमारा फोर्स जो होता है वो सेम रहेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर इस केस में मैंने अभी पानी में डाल दिया या लिक्विड में डाल दिया या एयर में डाल दिया, कहीं पर भी लेके जाऊं हमारे पार्टिकल्स के बीच का फोर्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो हेंस द आंसर विल बी नथिंग बट द कांस्टेंट फोर्स दैट इज F. So F will be the answer. This means that force at any place and any particular location remains constant. Now let us take the next MCQ. This is a very interesting MCQ based on dimensions. We have to calculate the dimension of capital G. You know G क्या है? Capital G है हमारे universal gravitational constant. एक point बता दो universal gravitation constant के बारे में कि ये ऐसा constant है जो पूरे universe में क्या रहता है, constant रहता है। हम universe में कहीं पर भी चले जाए, एक माइन में चले जाए या हमारे सैटेलाइट को मून पे चले जाए, कहीं मार्स पे चले जाए, जुपिटर पे चले जाए, कहीं पर भी हम चले जाए, हमारा ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, सो लेट अस डिराइव द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी इज, सम ऑप्शंस आर गिवन टू अस, लेट अस डिराइव दिस आउट। वी नो F इज इक्वल टू G m1 m2 upon r square. Hence from here I can write this capital G as F r square m1 m2. Correct? कैपिटल G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कैपिटल G का डायमेंशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक बहुत ही बेसिक अप्रोच लगा दूंगा। ये बेसिक अप्रोच कहता है कि हम क्या करें, हम अपने जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, फोर्स है, हमारा डिस्टेंस है, मासेस है, उसको क्या करें, उसको हम उनके ओरिजिनल डायमेंशन में स्प्लिट अप कर दे और फाइनली हम अपना डायमेंशन ऑफ कैपिटल G फाइंड करें। लेट अस कैलकुलेट दैट। कैपिटल G विल बी F का डायमेंशन क्या होता है, हमने पढ़ा, फोर्स होता है m1 L1 T-2 बराबर। हमने फोर्स का डायमेंशन देखा था कि फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सिमिलरली अगर R की बात करूं तो R क्या है, R हमारा डिस्टेंस है और हम डिस्टेंस को हमेशा कैसा मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम हमेशा हमारे लेंथ के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस इज L1 बट इन दिस केस स्क्वायर होने की वजह से यहां पर मैं डालूंगा पावर 2 क्योंकि ये स्क्वायर होगा। अच्छा, अब मासेस की बात करूं, मासेस का डायमेंशन कैसा होता है, मासेस का डायमेंशन होता है m1। इसके लिए ये m1 के लिए m टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर 1। समझ में आया, ये m1 इसके लिए ये m2 के लिए m टू द पावर 1। अच्छा, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो व्हाट विल हैपन, आई विल गेट m1 L1 T-2 एंड L2। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली इस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके आगे हम क्या कर रहे हैं, हम डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, m टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर 1। वी नो m टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर 1 क्या हो जाता है, m टू द पावर 2। श्योर? अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, इसी इक्वेशन में हम इस m को जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में ले जाएंगे। जब इस m2 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर। किसी चीज को, किसी पावर को आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है। m1 L1 T-2 मल्टीप्लाई बाय L2 मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर -2। ठीक है, ये क्या बन गया, ये मेरा डायमेंशन ऊपर आ गया। नाउ लेट अस कैलकुलेट कि हमें किस फॉर्म में दिया गया है, हमें L, M और T के फॉर्म में दिया गया है। तो हम इसे L, M और T के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। L के लिए मैं लिखूंगा 1 + 2, 1 + 2 इज नथिंग बट 3। M के लिए लिखूंगा 1 - 2, 1 - 2 क्या है, -1। और T के लिए क्या होता है, T के लिए वैसा का वैसा -2। हेंस द डायमेंशनल फॉर्मूला इज L3M - 1 T-2। दिस इज अ मेथड और दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G दैट इज नथिंग बट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेट अस चेक आउट कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। यस, आवर आंसर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, L3M - 1 T-2। ओके, सो दीज वर द MCQs which were based on the Newton's law of gravitation. Hope you had a good time and had a good knowledge watching these MCQs out. Thank you so much.